بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا جی، ابھی ہم جماعت سوم کی واقفیت عامہ کا باب نمبر 7 پڑھیں گے، جس کا نام ہے مسکن۔ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ہیبیٹیٹ۔ سب سے پہلے ہمیں بتایا جا رہا ہے اس میں کہ کائنات میں زمین ہی ایک سیارہ ہے جس پر زندگی موجود ہے۔ آپ کو یہ بیٹے علم ہوگا کہ نظام شمسی یعنی سورج اور اس کے گرد جو حرکت کرنے والے گھومنے والے جو سیارے ہیں ان کو نظام شمسی کہتے ہیں۔ اس نظام شمسی میں ایک ہی ایسا سیارہ ہے جہاں پر زندگی جو ہے وہ موجود ہے، اور وہ زمین ہے۔ اب کائنات میں زمین ہی ایک ایسا سیارہ ہے جس پر زندگی موجود ہے۔ زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے روشنی اور درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے، جس کا سب سے بڑا ذریعہ سورج ہے۔ ٹھیک ہے بیٹے، اب یہ سوال نمبر 3 جو ہے مختصر آپ سے پوچھا جائے گا مشق کے اندر کہ سورج جانداروں کے لیے کیوں اہم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جانداروں کے زندہ رہنے کے لیے روشنی اور حرارت دو چیزیں انتہائی ضروری ہیں، اور ان دونوں چیزوں کا جو ذریعہ ہے وہ سورج ہے، جس وجہ سے جو ہے وہ سورج انتہائی ضروری ہے جانداروں کے لیے۔ یہ روشنی اور حرارت شمسی توانائی کہتے ہیں۔ شمس کہتے ہیں بیٹے سورج کو، تو سورج سے جو آنے والی توانائی یا حرارت اور روشنی ہوتی ہے اس کو ہم شمسی توانائی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پودے سورج سے حاصل کردہ توانائی کو استعمال کر کے خوراک بناتے ہیں۔ یہ آپ نے پڑھا ہوگا سائنس کی کتاب میں بھی، یا آپ لوگ پڑھیں گے اس کو، اس عمل کو فوٹو سینتھسس کہتے ہیں، یعنی سورج کی روشنی سے پودوں کا خوراک بنانا۔ اور باقی جاندار زندہ رہنے کے لیے پودوں پر انحصار کرتے ہیں۔ ہم لوگ انسان جو ہیں وہ بھی دیکھ لیں کہ زراعت جو ہے اس پر ہمارا انحصار ہے، گندم کھاتے ہیں، اور بہت ساری اجناس جو ہیں جو زمین سے اگتی ہیں وہ ہماری خوراک ہیں۔ سورج کے بغیر زمین پر زندگی ممکن نہیں۔ اگر سورج نہ ہو تو اس کے بغیر زندگی ممکن ہی نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے بیٹے، اچھا کیا آپ جانتے ہیں کہ زمین کو انگریزی میں ارتھ کہتے ہیں، اس کو ٹیرا بھی کہتے ہیں۔ سورج زمین سے 11,990 گنا بڑا ہے۔ نیکسٹ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کیا پودوں کی نشو و نما کے لیے روشنی ضروری ہے۔ ایک ہی قسم کے 3 پودے لیں۔ یہ ایک تجربے سے جو ہے وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تجربہ کر کے دیکھیں کیا روشنی ضروری ہے کسی پودے کی نشو و نما کے لیے، یعنی اس کے بڑھنے کے لیے۔ ایک پودے کو سورج کی روشنی میں، دوسرے کو اندھیرے میں رکھیں، تیسرے پودے کو پولیتھین یعنی پلاسٹک سے ڈھانپ دیں۔ تینوں پودوں کو روزانہ برابر مقدار میں پانی دیں۔ ان میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کا مشاہدہ کریں اور نتائج نوٹ بک میں مشاہداتی جدول کے مطابق درج کریں۔ یعنی ایک جدول نیچے دیا گیا ہے، ٹیبل دیا گیا، اس کے مطابق آپ نے وہ انفارمیشن جو ہے وہ اس میں رائٹ کرنی ہے۔ ٹھیک ہے جی بیٹے، اچھا اس کے بعد اگلا ٹاپک ہے ہمارا مسکن یعنی ہیبیٹیٹ کے بارے میں۔ تو جانداروں کو زندگی برقرار رکھنے کے لیے روشنی، حرارت اور خوراک کے علاوہ زندہ رہنے کے لیے جگہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جانداروں کے رہنے کی جگہ ان کا مسکن کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جانداروں کے رہنے کی جو جگہ ہوتی ہے وہ ان کا مسکن کہلاتی ہے، رہنے کی جگہ کہتے ہیں۔ مسکن وہ قدرتی ماحول ہے جہاں جاندار رہتے ہیں، نشو و نما پاتے ہیں اور زندہ رہنے کے لیے اپنی ضروریات حاصل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹے، آگے بڑھتے ہیں۔ مسکن کی اقسام کے بارے میں بتایا گیا ہے، یعنی ٹائپس آف ہیبیٹیٹ۔ مختلف قسم کے پودے اور جانور مختلف مساکن میں رہتے ہیں۔ مسکن کی 2 بڑی اقسام ہیں، زمینی مسکن اور آبی مسکن۔ ٹھیک ہے، زمین جیسا کہ آپ کو زمین کے بارے میں پتا ہوگا، اسی طرح آب کہتے ہیں پانی کو، مسکن رہنے کی جگہ، زمین پہ رہنے والے اور پانی میں رہنے والے۔ زمینی مسکن لینڈ ہیبیٹیٹ، سطح زمین پر پائے جانے والے جانوروں کا مسکن زمینی مسکن کہلاتا ہے۔ یعنی جو زمین پر رہنے والے جانور ہیں، جاندار ہیں، ان کا مسکن جو ہے وہ زمینی مسکن ہوگا۔ زمینی مسکن کی اقسام میں جنگلات، گھاس کے میدان اور صحرا شامل ہیں۔ یعنی یہ زمینی مسکن کی بھی آگے اقسام ہے، کچھ جاندار جنگلات میں رہتے ہیں، کچھ گھاس کے میدانوں میں رہتے ہیں، کچھ صحرا میں رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح جنگل، سب سے پہلے فارسٹ کے بارے میں بتایا گیا، کہتا ہے جنگل سرسبز درختوں اور پودوں سے ڈھکا ہوا بڑا علاقہ ہوتا ہے۔ یہ جنگل کی تعریف ہے۔ ٹھیک ہے، کہ جنگل کسے کہتے ہیں، یعنی سرسبز درختوں اور پودوں سے ڈھکا ہوا بڑا علاقہ۔ جنگلات کی مختلف اقسام ہیں جن کا انحصار مختلف عوامل مثلا مٹی، آب و ہوا اور پانی پر ہے۔ جنگلات میں مختلف اقسام کے جانور جیسا کہ شیر،
भेड़िया, बंदर, जराफा वगैरह, और दरख्त जैसे चीड़ का दरख्त, सनोबर का और कीकर वगैरह पाए जाते हैं। तो ये सारी बातें आपने ध्यान से सुननी है और याद रखनी है, क्योंकि मश्क में इन्हीं से मुतल्लिक पूछा जाएगा। जंगलात इन जानवरों और पौधों का मस्कन है। ठीक है बेटे, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सहरा के बारे में हमें बताया गया है कि सहरा ज्यादातर रेतला, गर्म और खुश्क इलाका होता है। रात निस्बतन ठंडी होती है। सहरा में बहुत कम बारिश होती है, इसलिए पानी की किल्लत होती है। किल्लत कहते हैं कमी को। सहरा में सिर्फ वही जानवर और पौधे जिंदा रह सकते हैं जो सहरा के सख्त मौसमी हालात को बर्दाश्त कर सके। मसलन ऊंट, शुतुरमुर्ग और थोहर वगैरह। थोहर जो है वहाँ के आप कह लें पौधे का नाम है, और ये दूसरे दो जानवर हैं, ऊंट और शुतुरमुर्ग। ये भी जानिए कि पाकिस्तान में 3 बड़े सहरा हैं, एक थार का, दूसरा थल और तीसरा चोलिस्तान। ये इनका नाम भी आपने याद रख लेना, आपसे आपके उस्ताद पूछ सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि सहराए गुबी चीन और मंगोलिया में पाया जाता है? ये दुनिया के सर्द तरीन सहराओं में से एक है। यहाँ दर्जा हरारत -40 दर्जा सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। बेटे -40 का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ जम जाती है, और -40 कितना होगा, यानी बर्फ जमने के दर्जा हरारत से भी 40 गुना नीचे। ठीक है। घास के मैदान, ग्रास लैंड्स, घास और सब्जे से ढके हुए वसी इलाके घास के मैदान कहलाते हैं। यहाँ कई इकसाम की घास पाई जाती है, लेकिन दरख्त कम होते हैं। घास के मैदान मुख्तलिफ जानवरों मसलन हिरन, हाथी और जेबरा वगैरह का मस्कन है। ठीक है जी, यानी हिरन, हाथी और जेबरा वगैरह ज्यादा घास के मैदानों में पाए जाते हैं, यानी जहां घास के मैदान होते हैं वहां पर ये जानवर जो हैं वो पाए जाते हैं, ये उनका मस्कन है। आगे बेटे आबी मस्कन, वाटर हैबिटेट। जमीन पर पाए जाने वाले पानी के जखायर को आबी मस्कन कहते हैं। कई इकसाम के जानवर और पौधे पानी में पाए जाते हैं। पानी उनका मस्कन है, यानी पानी उनके रहने की जगह है। मछली, दरियाई घोड़ा और मेंढक वगैरह पानी में रहते हैं। अच्छा, मछली जो है ये तो आप लोगों को आमतौर पर पता ही होगा कि मछली किसे कहते हैं, ये आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये मछली है। इसी तरह कई किस्म के पौधे भी पानी में नश्वनुमा पाते हैं, मसलन समंदरी घास, एलजी यानी जिसे काई भी कहते हैं हम, और कंवल वगैरह। आगे बेटे जमीनी मस्कन की तरह आबी मस्कन की भी मुख्तलिफ इकसाम है। सबसे पहले ताज़ा पानी, दरिया, झीलें, तालाब और नदियां वगैरह ताज़ा पानी में शामिल हैं। ताज़ा पानी मेंढक, बतख, मछली और कंवल का मस्कन है। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। समंदरी मस्कन, मेरीन हैबिटेट। समंदर सबसे बड़ा आबी मस्कन है। जानवरों और पौधों की मुख्तलिफ इकसाम की बहुत बड़ी तादाद इस मस्कन में पाई जाती है। समंदर जेलीफिश, केकड़ा, सितारा मछली, समंदरी कछुआ, समंदरी घास और काई का मस्कन है, यानी ये चीजें समंदर में पाई जाती हैं, समंदर में ही रहती हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में मौजूद जानदारों में सबसे बड़ा जानदार ब्लू व्हेल है और इसका मस्कन समंदर है, यानी समंदर में व्हेल रहती है। साहली मस्कन, कोस्टल हैबिटेट, ये वो इलाका होता है जहां समंदर और जमीन आपस में मिलते हैं। ठीक है। इस मस्कन में मुख्तलिफ किस्म के जानवर और पौधे पाए जाते हैं, मसलन मैंग्रोव, दलदली घास और केकड़े वगैरह। इसके बाद है बेटे कुतबी इलाका, पोलर रीजन। कुतबी इलाका सर्द तरीन मस्कन है। यह इलाका सारा साल बर्फ से ढका रहता है। यहाँ पौधे इंतहाई कम तादाद में पाए जाते हैं। कुतबी इलाके में पाए जाने वाले जानवरों में कुतबी रीछ, पेंगुइन और भेड़िए वगैरह शामिल हैं। ठीक है जी। इसके बाद क्या आप जानते हैं कि कुतुब जनूबी, जिसे अंटार्कटिका कहते हैं, का 90% इलाका बर्फ से ढका हुआ है। पेंगुइन ऐसा परिंदा है जो उड़ नहीं सकता लेकिन बहुत अच्छी तरह तैर सकता है। बर्फानी इलाके में पाए जाने वाले जानवरों की जिल्द के नीचे चर्बी की एक मोटी तह होती है जो उन्हें सर्दी से महफूज रखती है। इसके बाद बेटे एक सरगर्मी है जो कि मैंने पहले ही हल कर दी है। दर्ज झैल मसाकन में पाए जाने वाले एक पौधे और एक जानवर पर परिंदे की तस्वीर चिस्पा करें। जानवर या परिंदे की तस्वीर चिस्पा करें। अब यहाँ मैंने लिख दिया है, आप इससे मुतल्लिका जो एक तस्वीर भी यहाँ चिस्पा करेंगे। ठीक है। आप जो एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे उसमें एक तस्वीर लगाएंगे। सहरा में थोहर, ये हमने सारे पढ़े हुए हैं पहले, अभी तक जो हमने पढ़ लिया है
اس में ये सब के जवाबात हमने पहले पढ़े हुए हैं। जानवर या परिंदा कौन सा होगा इसमें? ऊंट या सांप को लिख सकते हैं हम सहरा में, ठीक है। इसके बाद जंगल में कीकर, शीशम, ठीक है, और शेर, इसका शेर का मस्कन है ये। घास के मैदानों में सूरजमुखी वगैरह, ठीक है, और ज़ेबरा और हिरन जो है वो इसका मस्कन है, यानी ज़ेबरा और हिरन का मस्कन है ये घास के मैदान। हाथियों का भी। इसके बाद कुतबी इलाका, मोसिस, ठीक है, और कुतबी रीछ हो गया, पेंगुइन हो गया, ये इनका मस्कन है ये कुतबी इलाका जो है। ताज़ा पानी, इसमें कमल के फूल खिलते हैं, यानी कमल के फूल इसमें उगते हैं। इसके बाद इसमें मछली होती है एक रहू खास किस्म की जो सिर्फ ताज़ा पानी में ही होती है। नमकीन पानी में एल्जी वगैरह होते हैं जिसे हम काई कहते हैं। जेली फिश का मस्कन है ये, ठीक है जी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, माहौलियाती निज़ाम को पढ़ते हैं अब हम, जिसे इकोसिस्टम कहते हैं। किसी जगह पर मौजूद तमाम जानदार और बेजान अशिया एक दूसरे पर असर अंदाज होते हैं। इनमें पौधे, जानवर, परिंदे, हशरात, पानी, चट्टानें और मिट्टी वगैरह शामिल हैं। इनको माहौलियाती निज़ाम कहते हैं। मुख्तलिफ किस्म के जानवरों का माहौलियाती निज़ाम मुख्तलिफ होता है। मसलन मेंढक का माहौलियाती निज़ाम शेर के माहौलियाती निज़ाम से मुख्तलिफ है। मुताबिकत, एडेप्टेशन, कुदरती माहौल में मुख्तलिफ अवामिल की वजह से तब्दीलियां रूनुमा होती रहती हैं। जानदार अपनी बका के लिए, यानी बाकी रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए, जानदार अपनी बका के लिए अपने आप को इन तब्दीलियों के लिए तैयार करते हैं। किसी खास मस्कन में रहते हुए जानदार बदलते हुए हालात का मुकाबला करने के लिए अपने अंदर कोई खासियत पैदा कर लेते हैं। इसे मुताबिकत कहते हैं। यह मुताबिकत खुराक के हुसूल, मौसमी असरात और दुश्मनों से बचाव के लिए ज़रूरी होती है। आइए देखते हैं मुख्तलिफ जानवर किस तरह अपने मस्कन से मुताबिकत रखते हैं। जरा सोचिए कि इंसान अपने माहौल से किस तरह मुताबिकत इख्तियार करता है, ये आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। अच्छा बेटे, सबसे पहले एडेप्टेशन इन एनिमल्स, जानवरों में मुताबिकत के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले ऊंट के बारे में पढ़ लेते हैं। ये एक सवाल है मुख्तसर, ठीक है, उसका भी जवाब हमने इसी में से ही लिखना है कि ऊंट किस तरह सहराई मस्कन से मुताबिकत रखता है। कहता ऊंट एक सहराई जानवर है। सहराई हालात का मुकाबला करने के लिए ऊंट दर्ज झैल मुताबिकत रखता है। ऊंट अपनी कोहान में चर्बी जमा कर लेता है और कई दिन खाए पिए बगैर जिंदा रह सकता है। यानी अल्लाह ताला ने ऊंट को बनाया ही ऐसा है कि जो वो खुराक खाता है उसकी वजह से उसकी ये जो कोहान है, ये ऊपर उभरा हुआ हिस्सा, इसको कोहान कहते हैं, ठीक है बेटे। ये वाला हिस्सा, ये तीर का निशान भी है इधर, ठीक है, इसको कोहान कहते हैं ऊंट की। तो यहाँ पर इसकी चर्बी जमा हो जाती है और कई दिन खाए पिए बगैर जिंदा रह सकता है। ऊंट के पांव नरम और चौड़े होते हैं जो इसे रेत पर चलने में मदद देते हैं, ठीक है जी। ये ऊंट के जो पांव हैं ये नरम होते हैं और चौड़े होते हैं जिसकी वजह से इसको रेत में चलने में मदद मिलती है। ऊंट नथने बंद करके, यानी अपनी नाक को बंद करके अपने आप को रेत से महफूज रखता है। यानी अगर रेत का तूफान वगैरह भी आ रहा है उसके बावजूद जो ऊंट है वो उसमें चल सकता है। वजह उसकी यही है कि जो हमें बताया जा रहा है कि इसकी खुसूसियात की बिना पर। ऊंट की लंबी पलकें, ठीक है, आंखों के ऊपर जो बाल होते हैं लंबे लंबे, वो ऊंट की लंबी पलकें आंखों में रेत दाखिल नहीं होने देती। हमारी इंसानों की भी जो पलकें होती हैं उसको भी अल्लाह ताला ने इस तरह से बनाया है, यानी उनकी खूबी ये है कि हमारी आंखों में मट्टी ना जाए। मछलियां हर तरह के आबी मस्कन में पाई जाती हैं। आबी मस्कन में रहने के लिए मछलियां दर्ज झैल मुताबिकत रखती हैं। उनके जिस्म के दोनों अतराफ में फिन्स होते हैं जो उन्हें तैरने में मदद देते हैं, ठीक है। ये देखें, ये फिन्स हैं इसके। मछलियों का मुंह पतला और नोकदार होता है जो पानी में रास्ता बनाने में मददगार है। ये आप बड़ी जमातों में पढ़ेंगे। ये जो इस तरह की लंबूतरी शक्ल होती है, जैसे जहाज की भी इसी तरह बनाई होती है, ठीक है। गाड़ियां जो तेज स्पीड से दौड़ती हैं वो भी आगे से बारीक उनका फेस होता है। उसकी वजह यह कि इससे जो मुखालिफत होती है वो कम उनका सामना करना पड़ता है, या हवा की मुखालिफत या पानी की, उसको फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। मछलियां अपनी खास आंखों की मदद से पानी में देखने की सलाहियत रखती हैं। यानी अल्लाह ताला ने उनकी आंखें बनाई ही इस तरह से हैं कि वो पानी में देख सकती हैं। इनके सर के अतराफ में गलफड़े होते हैं जो सांस लेने में मददगार हैं। यानी ये वाला हिस्सा जो है इसके गलफड़े हैं और इसका फायदा इसको ये है कि ये इसे सांस लेती हैं। मछलियों की दुम दो शाखा होती है। ये देखें, दुम को देखें, इसके दो कोने होते हैं ये, जिससे ये पानी में आसानी से तैर सकती हैं।
यानी तैरने में ये मदद देती हैं ये वाली। अच्छा, आगे चलते हैं, बर्फानी रीछ के बारे में पढ़ते हैं कि बर्फानी रीछ कुतबी इलाके में पाए जाते हैं। कुतबी इलाके की जब भी बात की जाए तो आपके ज़हन में फौरन आना चाहिए जहां सारा साल बर्फ जमी रहती है। ठीक है, शुमाली कुतुब और जुनूबी कुतुब जमीन के कुतुबैन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ सख्त सर्दी पड़ती है। इस सर्दी का मुकाबला करने के लिए बर्फानी रीछ में मुताबिकत इस तरह होती है कि इसकी खाल मोटी और सख्त होती है। खाल के नीचे चर्बी की मोटी तह इसे सर्दी से महफूज रखती है। ठीक है जी, पानी में तैरते वक्त ये अपनी नाक बंद कर लेता है। ठीक है, और सूंघने की तेज हिस्स इसे शिकार को ढूंढने में मदद करती है। इसकी खाल का सफेद रंग बर्फ में इसे दुश्मनों से महफूज रखता है। इसके पांव नरम, चौड़े और खमदार होते हैं और इसे बर्फ पर चलने में मदद देते हैं। खमदार आप कह लें कि ये फ्लैट नहीं होते, उस पर जो है वो ऊपर नीचे, जैसे आप कह लें कि हल्की हल्की दरारों की तरह। पौधों में मुताबिकत, एडेप्टेशन इन प्लांट्स, थोहर गर्म और सहराई इलाके में पाए जाने वाले पौधों के तने मोटे और सख्त छाल वाले होते हैं, जिससे इन पौधों की पानी जखीरा करने की सलाहियत बढ़ जाती है। इनके पत्ते बहुत छोटे या कांटेदार होते हैं और जड़ें जमीन में बहुत गहरी होती हैं ताकि पानी जज्ब करने में आसानी हो। मसलन थोहर, जिसे कैक्टस भी कहते हैं, ठीक है अंग्रेजी में। नोकदार पत्ते जानवरों से बचाते हैं इसे। ठीक है, मसाम दिन को बंद हो जाते हैं और रात को खुलते हैं ताकि नमी के अखराज को कम किया जा सके। मोटा तना पानी जखीरा करने में मदद देता है। लंबी, पतली और गहरी जड़ें जमीन से पानी जज्ब करने में मददगार होती हैं। आगे बेटे कमल के बारे में बताया गया हमें। इसमें एक सवाल का जवाब भी है जो कि सवाल नंबर 5 होगा। मुख्तसर सवालात में पूछा यह है कि आबी मस्कन के पौधों की खुसूसियात। तो कुछ खुसूसियात ये हैं कि पानी में पाए जाने वाले पौधों के पत्ते बड़े और चौड़े होते हैं जो उन्हें पानी में तैरने में मदद देते हैं। उनके तने पतले, लचकदार और पानी के अंदर होते हैं, जैसा कि कमल एक मिसाल दी है। ठीक है, इसी तरह चीड़, सर्द इलाकों में पाए जाने वाले पौधों के पत्ते बारीक और नोकदार होते हैं। इनमें फूल की बजाय कोन होती है। ठीक है, कोन का मतलब तीखा सिरा, जो सर्द मौसम में बंद रहती है। कोन गर्म मौसम में खिलती है और बीज बिखर कर अफजाइश नस्ल का सबब बनती हैं, मसलन चीड़ वगैरह। आगे बेटे एक चार्ट दिया गया। चार्ट में हमें कहा गया है कि ये मस्कन, आबी मस्कन की आगे बताई गई है कि इसमें ताज़ा पानी, ये भी आबी मस्कन में आता है। साहल, ठीक है, साहली मस्कन, नमकीन पानी, कुतबी मस्कन, ठीक है ना। इसके बाद जमीनी मस्कन में 3 आगे उसकी इकसाम है, जंगल है, सहरा है या मैदान है। इसके आगे बढ़ते हैं, कुदरती मसाकन पर इंसानी सरगर्मियों के असरात, यानी इंसान जो काम करता है, जो जिंदगी गुजार रहा है, उसके क्या असरात होते हैं कुदरती मसाकन पर। इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन नेचुरल हैबिटेट्स। आप जान चुके हैं कि जंगलात, सहरा, घास के मैदान, ताज़ा और नमकीन पानी के ज़खायर मुख्तलिफ जानदारों के मसाकन हैं, यानी मुख्तलिफ जानदार इनमें रहते हैं। इंसान अपने फ़ायदे के लिए इन कुदरती मसाकन को मुख्तलिफ तरीक़ों से मुतासर कर रहे हैं, जिससे इन मसाकन में ऐसी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं जो वहाँ पाए जाने वाले पौधों और जानवरों के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं। ठीक है जी, अब हमारे पास सवाल नंबर 2 का जवाब आ रहा है, जिसमें पूछा गया है कि इंसानी सरगर्मियों के कुदरती मसाकन पर कोई से 3 असरात। तो कहते हैं कि इंसानी सरगर्मियों के नतीजे में जानदारों को खुराक, पानी और पनाह गाहों की कमी का सामना होता है, यानी ये असरात हो रहे हैं इंसानी सरगर्मियों के जानदारों के मसाकन पर। ठीक है जी, और यूं उनकी जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। अमेज़न जंगलात जमीन पर सबसे बड़े बरसाती जंगलात हैं। पिछले 50 साल में इंसानी सरगर्मियों की वजह से उनके रकबे में 17% तक कमी हुई है। जमीनी मस्कन पर इंसानी सरगर्मियों के असरात, ये नीचे एक तस्वीर भी दिखाई गई है जिससे हमें थोड़ा सा अंदाजा हो रहा है कि क्या असरात हो रहे हैं। इंसानी इमारती लकड़ी, ईंधन और आबादकारी के लिए जंगलात और सरसब्ज मैदानों को खत्म कर रहा है, जिससे पौधे और जानवर कुदरती मस्कन से महरूम हो रहे हैं और इनकी जिंदगी खतरे से दो चार है। कीमियाई खादों और कीड़े मार अद्वियात के इस्तेमाल से ना सिर्फ पौधे और जानवर बल्कि इंसान भी मुतासर हो रहे हैं। इसके बाद है बेटे आबी मस्कन पर इंसानी सरगर्मियों के असरात। फैक्ट्रियों और घरों से निकलने वाला गंदा पानी आबी मसाकन को आलूदा कर देता है।
جس سے وہاں پائے جانے والے جانداروں کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ سمندری جہازوں سے بہنے والا تیل بھی سمندری حیات کی تباہی کا سبب بنتا ہے، کیونکہ جو تیل ہوتا ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جہازوں کی مدد سے لے جایا جاتا ہے، تو بعض دفعہ کسی ایکسیڈنٹ، کسی حادثے کی صورت میں وہ سارے کا سارا تیل جو ہے وہ پانی کے اندر مل جاتا ہے، جس سے آبی جو جاندار ہیں ان کو بہت زیادہ مسئلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد بیٹے ہمارا کیونکہ سبق مکمل ہو جاتا ہے، اب ہم اس کے اہم نکات کو پڑھیں گے۔ اہم نکات میں سب سے پہلا نکتہ ہمیں بتایا ہے کہ سورج روشنی اور حرارت کا ذریعہ ہے جو زمین پر زندگی برقرار رکھنے کا سبب ہے۔ تمام جانداروں کو زندہ رہنے کے لیے خوراک، ہوا، پانی اور روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ مسکن سے مراد وہ جگہ ہے جہاں جاندار قدرتی طور پر پائے جاتے ہیں اور اپنی ضرورت کی اشیاء حاصل کرتے ہیں۔ خشکی پر پائے جانے والے جانوروں کا مسکن زمینی مسکن کہلاتا ہے۔ زمینی مسکن کی اقسام جنگلات، گھاس کے میدان اور صحرا ہیں۔ زمین پر پائے جانے والے پانی کے ذخائر کو آبی مسکن کہتے ہیں۔ آبی مسکن کی اقسام میں تالاب، دریا، سمندر اور قطبی علاقے شامل ہیں۔ اس علاقے میں موجود جاندار اور بے جان اشیاء ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں، اسے ماحولیاتی نظام کہتے ہیں۔ اس کے بعد بیٹے جانداروں میں اپنے ماحول میں بہتر طور پر رہنے کے لیے قدرتی طور پر خصوصیت موجود ہوتی ہے، اسے مطابقت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے انسانی سرگرمیاں قدرتی مسکن کی تباہی کا سبب بنتی ہیں، جیسا کہ جنگلات کی کٹائی، فیکٹریوں اور گھروں سے نکلنے والا گندا پانی اور کیڑے مار ادویات کا استعمال، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد سوال ہے ہمارے پاس کہ درست الفاظ لگا کر خالی جگہ پور کریں، تو ہم خالی جگہ کو پور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ ہمیں کہا گیا ہے کہ روشنی اور حرارت کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے بیٹے؟ یہاں ہم لکھ دیں گے سورج۔ سورج روشنی اور حرارت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے پودے ڈیش تیار کرنے کے لیے شمسی توانائی استعمال کرتے ہیں۔ پودے اپنی خوراک، یہاں ہم لکھیں گے خوراک، یہ آ رہے گا ہمارے پاس خوراک۔ اس کے بعد ہے برفانی ریچھ اپنی ڈیش کی وجہ سے دشمنوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اپنی ڈیش کی وجہ سے کس وجہ سے بلا بیٹے؟ اپنی کھال کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ ایک کھال بھی اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے اس کا رنگ بھی سفید بنایا ہے، اس وجہ سے بھی وہ محفوظ رہتا ہے۔ صحرا جو ہے ڈیش کا مسکن، ڈیش مسکن کی مثال ہے، صحرا زمینی مسکن کی، تو یہاں ہم لکھیں گے زمینی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے زمین پر ڈیش علاقے قطبی علاقے کہلاتے ہیں، سرد ترین، یہاں لکھیں گے سرد ترین۔ اس طرح ہمارا یہ والا سوال حل ہو جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہے درست بیان کے سامنے صحیح اور غلط کے سامنے غلط کا نشان لگانا ہے۔ تو سمندر سب سے بڑا آبی مسکن ہے، کیا یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ یہ بالکل صحیح ہے، اس لیے یہاں پہ ہم ٹک کر دیتے ہیں۔ پانی میں پائے جانے والے پودوں کے تنے لچکدار ہوتے ہیں، یہ بالکل صحیح ہے۔ انسان قدرتی ماحول کو نقصان نہیں پہنچا رہا، یہ غلط ہے۔ سمندر کا پانی میٹھا ہوتا ہے، نہیں ہوتا میٹھا۔ کوئی جانور کسی بھی مسکن میں بآسانی رہ سکتا ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے بڑھتے ہیں، کالم ملانے ہیں آپس میں، یعنی کالم الف کو کالم بے سے ملانا ہے۔ تو سب سے پہلے ہے کہ فیکٹریوں سے نکلنے والا زہریلا پانی کیا کرتا ہے بیٹے؟ آبی مسکن کے جانداروں کے لیے خطرہ ہے، تو یہاں ہم اس کو اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں، آبی مسکن، یہ دیکھیں آبی مسکن کے لیے کہ جانداروں کے لیے خطرہ ہے۔ تازہ پانی کا مسکن کیا ہے بلا؟ تازہ پانی کا مسکن ہے بیٹے یہاں ندی، ان میں سے دیا گیا جو ندی ہے۔ اس کے بعد ہے صحرا۔ صحرا کیا ہے؟ گرم اور خشک علاقہ، ٹھیک ہے، اس کو صحرا کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں گرم اور خشک علاقہ۔ قطبی علاقہ سرترین علاقہ ہوتا ہے، ایسے ہم اس کو ملا دیتے ہیں۔ گھاس کے میدان، اس میں درخت کم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، گھاس زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے بیٹے کہ درجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیں۔ ان کے جوابات میں پہلے ہی آپ کو سبق پڑھاتے ہوئے بتا چکا ہوں، وہاں نمبرنگ میں نے کی ہوئی ہے۔ اگر آپ کو کسی سوال کا جواب نہ پتا چلے تو آپ وہاں دیکھیے گا، پھر بھی کوئی کنفیوژن ہو تو نیچے کمنٹ کر لیجئے گا۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 5 کی جانب۔ اس میں کہا گیا ہے کہ دی گئی تصاویر کو سامنے رکھتے ہوئے مسکن کی قسم خالی جگہ میں تحریر کریں۔ تو یہ جو گھاس کے میدان ہے، ٹھیک ہے، یہ جنگل ہے، اور یہ قطبی علاقہ ہے، اور یہ سمندری مسکن ہے، اور یہ صحرا ہے، اسی طرح یہ تازہ پانی ہے یہ، اور آخر میں یہ ساحلی مسکن ہے، کیونکہ دریا کا جو کنارہ ہے وہاں پہ درخت اگے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں، تو اس لیے یہ ساحلی مسکن ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں بیٹے سوال نمبر 6 کی جانب، جو کہ آخری سوال ہے اس سبق کا،
کہ میں ایک شتر مرغ ہوں, کیا آپ بتا سکتے ہیں میری مندرجہ ذیل خصوصیات صحرائی ماحول سے مطابقت رکھنے میں کس طرح مددگار ہوتی ہیں؟ تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے کہ لمبی مضبوط ٹانگیں اس کو تیز دوڑنے میں مدد دیتی ہیں, اور لمبی موٹی پلکیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی اس لیے ہیں کہ مٹی اور ریت سے بچانے کے لیے. بڑی بڑی آنکھیں جو ہیں وہ دور تک دیکھنے کے لیے اس کو مدد دیتی ہیں. اسی طرح لمبی اور لچکدار گردن جو ہے یہ ریڈار کی طرح کام کرتی ہے, اپنی گردن اوپر اٹھا کے یہ دور تک معائنہ کر سکتا ہے کہ اس کو اگر کوئی خطرہ ہو یا کوئی اور چیز اس نے دیکھنی ہو تو اس کے لیے آسانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے بیٹے, اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ سبق مکمل ہو جاتا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ آ چکی ہوں گی. کسی بھی سوال کی صورت میں آپ نیچے کمنٹ باکس کو یوز کر کے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں, اور ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ بیٹے اور بیٹیوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے اور وہ اس سے مستفید ہو سکے, جو کہ اس ویڈیو کو بنانے کا بنیادی مقصد ہے. شکریہ.